Okay, we are going to start now. As you people has already know that we have studied the non-inverting amplifier, non-inverting configuration. We have studied the non-inverting configuration in which we used to apply this voltage source on the non-inverting amplifier like this. This is the voltage follower, but it is a non-inverting configuration form because we have applied this voltage source at the non-inverting pin. Now we are going to start the inverting amplifier, and in this inverting amplifier we are going to apply this signal to whom we are interested to amplify at the inverting input. Inverting input we are going to apply now this circuit. So just you have to remember that when there is a non-inverting amplifier situation, we are going to apply the input at the non-inverting input, and when there is a inverting configuration, we are going to apply this voltage source to whom we are interested to amplify at the inverting input. So this one is the inverting configuration. For applying KVL, KCL, etc. everywhere, you must have to remember that its gain is a closed loop gain. A capital A is a closed loop gain is equal to minus R2 over R1. So the derivation is not required. Similarly, we have also find out the open loop gain, the closed loop gain of the non-inverting amplifier, that was 1 plus A was equal to 1 plus R2 over R1. But here the gain is minus R2 over R1. So you must have to remember these two gains, formulae for these two gains and nothing else then. Uh, Now let's make the uh, input and the output resistances or the equivalent circuits. So earlier we have stated that in the non-inverting configuration, or the op-amp is going to carry the high input impedance in me infinite input impedance. If you are seeing the arrow of the cursor in between these two inputs, the impedance was infinite ideally, but practically very high. And at the output, that was ideally zero, but practically was very low. So this was the finding. Now, with respect to here, non-inverting configuration, something is going to be changed. For example, we have made the equivalent diagram of this inverting configuration like this one. After R1, there is a shorted behavior between the two inputs. Short, the inputs are shorted, but we used to say that the outputs are open. The inputs are open. So very high impedance, infinite impedance was there. But now you remember that here we are shortening the inputs, and the rest of the things are the same. There is a voltage controlled voltage source which is going to give us the gain, the difference between the two inputs, and then that is going to be multiplied with the internal gain given, and at the output there is again the same idea that there is zero resistance at the output. So this is the equivalent diagram of the inverting configuration. Now let's see how this was is equal to short. Why this is equal to short now? Because previously we used to say that this is open. So let's see how this is going to be appear. Certainly we have defined that R naught is equal to 0 because the output is taken from the ideal dependent source. The output is 0. And we observe that V naught is actually equal to, we know that V naught is going to be obtained by the difference of the inputs multiplied by the internal gain. This we have also studied before. Now here let's see what is happening. VP is equal to 0 because VP is grounded here now.
So Vp is 0. We have placed Vp is equal to 0. Let's see what is happening mathematically. So from there we have obtained V naught is equal to minus A Vn. We obtained here like this one. And from there Vn we can find out minus V naught over A. When we know that this one is actually infinite, very high, if we are going to take it very high, then Vn is actually equal to 0. If this A is very high, then is approaching to 0. And if it is infinite, then certainly Vn will be equal to 0, like this. So Vn will be equal to 0. Why? Actually, we have made Vp is equal to 0, but Vn mathematically is appearing is equal to 0. तो इसका मतलब है इसको हमने 0 किया है, तो यहाँ भी 0 आ गया Vn पर. तो ये तो ग्राउंडेड है Vp, तो ये फिर वर्चुअली ग्राउंडेड है, तो लिहाजा इनपुट इज शॉर्टेड. We have seen that whichever the voltage we are going to apply at Vp, the same is appearing at the Vn. So it means that this Vn point is actually virtually equal to virtually grounded. Virtually ground terms we have introduced. Similarly, since the inverting, we have seen that there is a loading effect also, because we have applied Vi. Out of Vi, some of the voltage is going to be drop across R1. The rest of the voltage is going to be available at this point. So there is a loading effect also. This R1 is actually making the loading effect. We will see later on. Now let's move to the problem. So problem is that a grounded source of Vs2 voltage with the internal resistance 10K, ये internal resistance है 10K और इसकी value है 2 voltage. ये grounded source है, certainly ये ground है. Grounded means पूरा ground नहीं, एक terminal grounded है, and then that is connected in this way as it is shown. We are going to find out V naught as well as the input loading. हमने V नॉट मालूम करनी है और इनपुट लोडिंग मालूम करनी है. इनपुट लोडिंग का मतलब है यहाँ पर कितने वोल्टेज ड्रॉप होकर फाइनली हमें यहाँ पर मिल रहे हैं, ये V लोडिंग है ये, और V नॉट यहाँ पर आउटपुट मालूम करनी है. तो लेट्स स्टार्ट. वी नो दैट the gain of this amplifier is equal to this one minus R2 over R1, and A we can write down A V naught over Vs. Output over input is actually the gain. And then what is happening there? There is not only R1 at the input but also Rs also, and this is a voltage divider because both are connected in series. So actually the R1 is total is equal to Rs plus R1. So we can write down this formula like this formula after seeing the circuit. तो Vs उस तरफ चली गई, तो ये Vs ये voltage divider ही बन गया V naught. V naught is actually equal to this value. After placing the values, we have seen that the output is equal to -6 voltage. तो इस फॉर्म में जब हमने इसको कंसिडर किया है 10K को, तो आउटपुट जो आई है वो कितनी है, -6 voltage. Now let's see loading, input loading, because some of the voltage is going to be dropped here, rest of the voltages are available at the R1 and rest of the circuit. तो ये तो वोल्टेज डिवाइडर है, तो वोल्टेज डिवाइडर का फॉर्मूला लगाया सिंपली. 1.5 voltages are going to be available at this one. So out of 2 voltages, 0.5 voltages are going to be drop across 10 kilo ohm. Rest of the 1.5 voltage is going to be available at R1 and rest of the circuit. So this one is the loading effect. So 0.5 is the loading effect, because out of 2 voltage, 0.5 voltage is going to drop across there and rest of the voltages are going to be available at the rest of the circuit. So this indicating that 25% signal is going to be lost at this resistance because of the internal resistance. So it must be very, very small. It is 10 kg is high, sufficiently high. So
इसका मतलब है अगर इसको 0 कर देते हैं RS को, तो देन द वोल्टेज इज गोइंग टू बी अवेलेबल इज -8। अगर ये 0 हो जाती है आइडियली, अगर ये 0 नहीं है 10 के है तो फिर -6। दिस वन इज द लोडिंग इफेक्ट। एंड देन if the open loop gain of the circuit of the op amp, किसी भी op amp का 200,000 जो है वो ओपन लूप गेन है, इनपुट रेजिस्टेंस जो है वो 2 मेगा ओम है, एंड आर नॉट जो है वो आउटपुट की रेजिस्टेंस जो है वो 50 है। फाइंड द क्लोज लूप गेन ए। ये है सर्किट, इसका क्लोज लूप गेन। तो ये क्या है, इन्वर्टिंग एम्पलीफायर है, तो इसका गेन क्या होगा, इन्वर्टिंग, वो हम कंसिडर करेंगे वो सारा। अब हमें जो वैल्यूज गिवन है, इनपुट रेजिस्टेंस गिवन है, ऑप एम्प का गेन गिवन है, आउटपुट की रेजिस्टेंस गिवन है, तो we can made the equivalent resistance, equivalent circuit like this। ये पूरा डब्बा जो है ये क्या है, दिस वन इज द रिप्रेजेंटिंग द ऑप एम्प। हमें पता है ऑप एम्प के अंदर एक जो है वो डिपेंडेंट वोल्टेज कंट्रोल सोर्स होता है और आउटपुट के ऊपर रेजिस्टेंस है, एंड देन देयर इज ए आउटपुट। सिमिलरली वी नो दैट from there there is a input resistance। वो इनपुट रेजिस्टेंस 2 मेगा ओम गिवन है, वेरी हाई है। तो ये इस सर्किट को हम फिगर बी में इस तरह बना सकते हैं, इक्विवेलेंट सर्किट। तो नाउ लेट्स सी हाउ वी कैन सॉल्व टू फाइंड आउट दी, हमें क्या करना है, फाइंड क्लोज लूप गेन ए एंड करंट आई, और करंट आई मालूम करना है, ये जो करंट मालूम करना है और इसका गेन मालूम करना है। तो करंट आई मालूम करना है, तो जब आई की बात आ जाए कि करंट इज गोइंग टू बी डेल्ट विद एट द नोड्स बाय अप्लाइंग केसीएल। यू मस्ट हैव टू रिमेंबर इन योर माइंड, अगर आप इतने शार्प हैं तो आपको पता चलना चाहिए, वोल्टेज मालूम करना है तो केबीएल से मालूम हो सकता है वो, और करंट मालूम करना है तो केसीएल से मालूम हो सकता है। ये आपके जहन में रहने चाहिए ये पॉइंट्स। तो हम आ गए इस सर्किट में, यहाँ दो नोड बन रही हैं, एक तो ये करंट मालूम करना है इधर जो जा रहा है, तो इस नोड पर केसीएल लगा देंगे तो करंट मालूम हो जाएगा। तो फिर एक नोड ये भी बन रही है, इधर भी लगा देते हैं केसीएल। तो इस नोड में एक करंट एंटर हो रहा है, ये एक करंट यहाँ से लीव कर रहा है, ये दूसरा करंट भी लीव कर रहा है इस नोड से। ये करंट कैसे मालूम कर सकते हैं, Vs माइनस Vn डिवाइडेड बाई 10। ये करंट कैसे मालूम कर सकते हैं, V1 डिवाइडेड बाई 0, V1 माइनस 0 डिवाइडेड बाई 2m। ये करंट कैसे मालूम कर सकते हैं, V1 माइनस V0 डिवाइडेड बाई दिस रेजिस्टेंस। तो ये हमने लगाया KCL एट फर्स्ट नोड, दिस वन इज द KCL, दिस करंट इज एंटरिंग, दीज टू करंट्स आर लीविंग। तो लग गया आराम से, जो है वो हमने लगा दिया। अब यहाँ पर KCL लगाते हैं, ये इसमें ये करंट एंटर हो रहा है एक V1 माइनस V0 ओवर 20, और एक ही करंट लीव कर रहा है इधर V0 माइनस ABD ओवर 50। ये अब इन दोनों इक्वेशंस को देखें तो ए हमने मालूम करना है और BD हमें पता होना चाहिए क्या है। तो अब हम पहले BD मालूम कर लेते हैं। We know that BD is equal to this one, and BP we have maintained 0, and VN, so VD is equal to minus VN, VD is equal to minus V1। तो ये भी आ गई V1, ये VD की भी आ गई, तो ये VD की वैल्यू यहाँ पर रख देते हैं, और A कैन बी फाइंड आउट बाय यूजिंग फार्मूला, वो क्या है फार्मूला, -R2 ओवर R1। तो ये R2 है, ये R1 है, तो ये गेन भी आ गया, उन दोनों ए भी रख दिया, BD भी रख दिया इस इक्वेशन में। तो दिस इक्वेशन इज नाउ गोइंग टू बी पैरेलल एज टू दिस इक्वेशन, इक्विवेलेंट टू दिस इक्वेशन, क्योंकि इसमें भी V1 है और V0 है, और इसमें भी V0 है और V1 है, लेकिन एडिशनली जो VD था वो हमने मालूम करके रख दिया, ये भी मालूम कर लिया, तो अब इसमें भी V0 और V1 रह गया। तो बोथ द इक्वेशंस कैन बी सॉल्व्ड। आफ्टर सॉल्विंग दीज टू इक्वेशंस we have finally we can finally find out the I, current I।
बिकॉज द करंट आई इज एक्चुअली इक्वल टू, हमें क्या फिर मालूम करना है इसमें, V1 मालूम करना है और V0 मालूम करना है। वो तो इसी क्वेश्चन से आ जाएंगे। जब वो आ जाएंगे दोनों इसी क्वेश्चन से, तो आई कैसे मालूम हो सकता है, आई जो है वो कैसे मालूम हो सकता है, ये आई जो है देखो ना, V1 भी मालूम है, V0 भी मालूम हो गया, तो इस रेजिस्टेंस का करंट मालूम करना है, उस राशि को मालूम हो जाएगा ये। So this one, these problems are actually looking very difficult but very easy. Now calculate the output V naught for the circuit given below. ये देखें, एक ये सर्किट है। अब हमने जो है वो क्या मालूम करना है, कैलकुलेट दी वी नॉट मालूम करनी है। तो यहाँ दो सोर्सेज लगे हुए हैं, तो सुपरपोजिशन लगाएंगे थ्योरम। एक सोर्स को एक वक्त में एक्टिव करेंगे, इसको सप्रेस किया तो ये सर्किट आ गया। और हमने जो है वो गेन मालूम किया, तो वी, अब जो आया गेन ऑफ वी यहाँ से मालूम हो सकता है ना, वी नॉट मालूम किया तो -15 वोल्ट आ गया बाय अप्लाइंग गेन फार्मूला। अब इसको एक्टिव किया, इसको सप्रेस किया, तो अगेन गेन फार्मूला लगाया और वी नॉट मालूम कर लिया, तो दोनों को ऐड कर दिया तो आ गया फाइनल वी नॉट। वेरी इजी क्वेश्चन, looking difficult but questions are actually very easy. So then there is a impact of negative feedback. We are going to see the impact of negative feedback. तो हमें पता है ये जो नेगेटिव फीडबैक है, ये देखें अगर आप गौर से, you have given negative feedback, and why we are going to give a negative feedback, we have already studied that it requires, because in order to make a stable system we must have to give a negative feedback, और वो ये वोल्टेज डिवाइडर है फार्मूला, तो ये इसका वोल्टेज ये बी मालूम कर लिया हमने, बी इज इक्वल टू आर आई प्लस आर एफ। अगर मल्टीप्लाई कर देंगे बी नॉट से, तो वो इसका जो है वो वोल्टेज डिवाइडर के मुताबिक वोल्टेज आ जाएंगे, लेकिन अभी हमने बी मालूम किया है सिर्फ उसमें से। आफ्टर प्लेसिंग दी वी एफ, दिस वैल्यू वी आउट, ठीक है ना, ये वी एफ इसी के बराबर है ना, फीडबैक वोल्टेज किसके बराबर है, अप्लाइंग दी वोल्टेज डिवाइडर। वोल्टेज डिवाइडर क्या होगा, यहाँ पर आउटपुट अगर मल्टीप्लाई हो जाएगी, अभी मैंने कहा, तो ये जो है वो वोल्ट, ये इस जगह पर वोल्टेज आ जाएंगे जो फीडबैक हो रहे हैं, तो ये रख दी हमने फिर वैल्यू बी बी आउट। तो आफ्टर टेकिंग स्टेप्स, एक्चुअली वी आर इंटरेस्टेड टू फाइंड आउट दिस इक्वेशन, ये इक्वेशन आ गई हमारे पास। तो आपने ये इक्वेशन रिमेंबर रखनी है कि इम्पीडेंस, इनपुट इम्पीडेंस, हमने नेगेटिव फीडबैक के इम्पैक्ट इम्पीडेंस के ऊपर देख रहे हैं, तो ये आगे इसकी नेगेटिव इसकी इनपुट इम्पीडेंस। दिस शोज, दिस इक्वेशन शोज दैट द इनपुट इम्पीडेंस ऑफ द नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर कॉन्फ़िगरेशन, ये नॉन इन्वर्टिंग है ना, क्योंकि हमने सिग्नल जो अप्लाई किया हुआ है पॉजिटिव पर अप्लाई किया है, पॉजिटिव पेन पर अप्लाई किया है, तो ये नॉन इन्वर्टिंग कॉन्फ़िगरेशन है, तो ये इसकी इनपुट इम्पीडेंस है जो हमने निकाली है फार्मूलों से। रिक्वायर्ड डेरिवेशन इज नॉट रिक्वायर्ड, सो वी हैव डायरेक्टली अप्रोच टू द फाइनल इक्वेशन। तो ये आपने इनपुट इम्पीडेंस देखनी है। तो दिस इक्वेशन शोज दैट द इनपुट इम्पीडेंस ऑफ द नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर कॉन्फ़िगरेशन with negative feedback is much greater than the internal input impedance of the op amp itself. जो इसकी इंटरनल इम्पीडेंस गिवन बाय द मैन्युफैक्चरर है, उससे ये कहीं ज्यादा है, ये फार्मूला हमें शो कर रहा है, क्योंकि इसमें 1 प्लस ओपन लूप गेन मल्टीप्लाइड बाय द इनपुट, ये जो बन रहा है फैक्टर बन रहा है रेशो, मल्टीप्लाइड द इनपुट इम्पीडेंस गिवन बाय द मैन्युफैक्चरर, ये ZIN जो है, ये ZIN क्या है, वो इनपुट है, इनपुट इम्पीडेंस है जो गिवन बाय द मैन्युफैक्चरर है, और फिर टोटल जाकर इनपुट इम्पीडेंस बन रही है। तो इसका मतलब है जो मैन्युफैक्चरर्स की गिवन इनपुट इम्पीडेंस है वो तो बहुत लो है एज कम्पेयर टू दिस टोटल। तो ये आपने याद रखना इसमें, इसकी इनपुट नेगेटिव फीडबैक का इनपुट इम्पीडेंस के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ता है। अब इसके आउटपुट इम्पीडेंस देख लेते हैं। हमें पता है इसका इंटरनल सर्किट जो है इस तरह का कुछ होता है, आउटपुट के ऊपर इम्पीडेंस, ये आउटपुट इम्पीडेंस देखनी है हमें। तो अब ये जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक तो है, ये होगी, पूरे सर्किट को देखेंगे तो वो होगी आउटपुट इम्पीडेंस टोटल।
तो after you must have to remember that this is the final equation of the output impedance, this one. अब ये हम बहुत कहते हैं कि एक्चुअली ये इनपुट इम्पीडेंस गिवन बाय द मैन्युफैक्चरर इज वेरी स्मॉल, वेरी स्मॉल, वेरी स्मॉल, हम ये कहते हैं आइडियली जीरो, बट द फार्मूला मैथमेटिकली इज गोइंग that it is more less than the given by the manufacturer. So after using RF feedback resistances, ये जो RI, RF और R1, R2, actually we are going to make the impedance more lower as compared to the impedance given by the manufacturer, क्योंकि ये इस फार्मूले से अपीयर हो रही है, ये पैरेलल है, ये देखें इन्वर्स रिलेशन बना रहा है। तो आउटपुट इम्पीडेंस जो कि मैन्युफैक्चरर ने गिवन है जी आउट, उससे कहीं ज्यादा कम है, क्योंकि वो आउटपुट इम्पीडेंस क्या होती है, डिवाइड होती है इस फैक्टर से, तब जाकर जो है वो टोटल इनपुट इम्पीडेंस आती है आफ्टर अप्लाइंग दी रेजिस्टेंसेस R1, R2 या RF, RI। तो यहाँ से भी हमें एक कंक्लूजन मिला, आउटपुट इम्पीडेंस से भी कंक्लूजन मिल रहा है, और इनपुट इम्पीडेंस से पहले हमें एक कंक्लूजन मिला कि इनपुट इम्पीडेंस मोर, टोटल इनपुट इम्पीडेंस आफ्टर अप्लाइंग R1, R2 इज मोर हायर देन द गिवन बाय द इनपुट इम्पीडेंस ऑफ बाय द मैन्युफैक्चरर। और जहां से क्या इम्पैक्ट मिल रहा है, मोर लोअर आउटपुट इम्पीडेंस एज गिवन बाय द मैन्युफैक्चरर, यहाँ जो ये फार्मूला ये शो कर रहा है। तो ये तो आ गया नॉन इन्वर्टिंग का। अब देखते हैं, ये एग्जांपल्स या फार्मूलों में आपने यूज कर देख लेना है। वोल्टेज फॉलोअर को देख लेते हैं, क्योंकि वो भी नॉन इन्वर्टिंग के साथ आता है ना। नॉन इन्वर्टिंग को आउटपुट को शॉर्ट करके जो है हम फीडबैक करते हैं, तो वो क्या बन जाता है, वोल्टेज फॉलोअर। तो उसकी इनपुट इम्पीडेंस इसके बराबर होती है, और उसकी आउटपुट इम्पीडेंस इसके बराबर होती है। तो यहाँ से भी हमें इंफॉर्मेशन वही मिल रही है कि द इनपुट इम्पीडेंस गिवन बाय द मैन्युफैक्चरर is very high, but after applying R1, R2, the total voltage follower की जो impedance आएगी वो ये आती है, it is more higher as given by the input impedance of the manufacturer। ये हमारी है जो हमने आफ्टर अप्लाइंग दी R1, R2, ये है। इसका मतलब ये तो मोर हायर है इनपुट इम्पीडेंस एज कंपेयर टू द गिवन बाय द मैन्युफैक्चरर। इधर आ जाते हैं, ये आउटपुट इम्पीडेंस है। तो ये तो आउटपुट इम्पीडेंस गिवन बाय द मैन्युफैक्चरर इज गोइंग टू बी डिवाइडेड बाय दिस टर्म, एंड देन आफ्टर डिवीजन वी आर गोइंग टू गेट द टोटल इनपुट इम्पीडेंस आफ्टर अप्लाइंग R1, R2। तो ये है, ये which is more lower as compared to the given by the lowest manufacturer। मैन्युफैक्चरर ने अगर इससे हमें लोअर दी है, लेकिन हमने जब उसकी अरेंजमेंट की है उसको अपनी उसके मुताबिक, गेन के मुताबिक, तो वो और ज्यादा कम हो गई है। दिस वन इज द एग्जांपल। तो हमने देख ली है इनपुट इम्पीडेंस नॉन इन्वर्टिंग की, वोल्टेज फॉलोअर की। अब देखते हैं इन्वर्टिंग की इम्पीडेंस, ठीक है जी, उसके ऊपर क्या इम्पैक्ट है फीडबैक का। ये आ गया इन्वर्टिंग एम्पलीफायर, ये है इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। इसको अगर हम देखें इन्वर्टिंग एम्पलीफायर को, वी आर गोइंग टू गेट डायरेक्टली मैथमेटिकल रिलेशन जी इन टोटल जो है वो दैट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू आर आई। यही है ना भाई, ये आ रही है ना इसके रास्ते में, और तो कोई नहीं आ रहा है, ये इधर से, क्योंकि ये तो शॉर्ट होती है। तो इसके लिए कौन सी रेजिस्टेंस अपीयर होगी, सिर्फ आर आई। ऊपर तो जो करंट नहीं जाना, क्योंकि ये शॉर्टेड है, वर्चुअली शॉर्टेड है। तो फिर इसकी टोटल इनपुट इम्पीडेंस आफ्टर अप्लाइंग आर आई, आर एफ जो अपीयर हो रही है, वो तो सिर्फ ये है, ये है सर्किट, सिर्फ ये बन रहा है। तो ये आ गई इनपुट इम्पीडेंस। अब इसके आउटपुट इम्पीडेंस देख लेते हैं। आउटपुट इम्पीडेंस इज गोइंग टू बी, फॉर्मूला ये है। तो जो मैन्युफैक्चरर ने गिवन है दैट इज गोइंग टू बी डिवाइडेड बाय दी this factor after we have applying R1, R2, and we are going to get the output impedance very low as comparatively given by the manufacturer, it is very low। तो ये हमें यहाँ से जो है वो हमने यहाँ पर देखा, अभी अभी एक्चुअली हमने इस क्वेश्चन में जो है वो हमने ये देखा है
कि how the negative feedback is going to impact the input impedances. वो कौन सी input impedances? After applying the R1 R2, वो impedances फिर कौन सी है? Closed loop gain की impedances है, closed loop की impedances जो बनती है, और ओपन लूप की तो मैन्युफैक्चरर ने गिवन हुई होती है ना। तो इसकी समरी जो है अभी हमने इम्पीडेंसेस हमने मैं इसकी जो है वो समराइज कर रहा हूँ अभी। इम्पीडेंस हमने देखा है इम्पैक्ट नेगेटिव फीडबैक का इम्पीडेंसेस के ऊपर, इनपुट इम्पीडेंसेस के ऊपर। ये कौन सी इनपुट इम्पीडेंसेस हैं जो हमने खुद से डिजाइन की हैं? एक तो इनपुट इम्पीडेंसेस जो है वो गिवन बाय द मैन्युफैक्चरर्स है, वो तो हम स्टडी कर चुके हैं। इनपुट इम्पीडेंसेस जो है वो बहुत ज्यादा होती हैं इनपुट की, और आउटपुट की जो है इंतहाई कम होती है। ये तो हम थ्योरेटिकली पढ़ चुके हैं। हम देख रहे हैं कि आफ्टर एप्लीकेशन ऑफ RF RI या R1 R2, उस वक्त जो इनपुट इम्पीडेंस आती है आफ्टर द कनेक्शन ऑफ द रेजिस्टेंस आउटसाइड रेजिस्टेंस, उस वक्त जो इम्पीडेंस आती है उनके ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है। तो हमने ये देखा कि फीडबैक जो है, अगर वो इनपुट इम्पीडेंस है, फीडबैक उनको और ज्यादा हाई कर देता है एज कंपेयर टू दी गिवन बाय द मैन्युफैक्चरर्स, और आउटपुट इम्पीडेंसेस को और ज्यादा लो कर देता है एज कंपेयर टू दी गिवन बाय द मैन्युफैक्चरर। ये हमने देखा। ये टोटल जो है वो हमारी जो है वो समरी है। इसमें अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो यू कैन रेज योर हैंड्स। ओनली द 9 स्टूडेंट्स आर देयर बट द अटेंडेंसेस यू विल मार्क होल, आई थिंक सो। तो कोई क्वेश्चन हो तो यू कैन रेज योर हैंड्स। I am waiting. If you have some question regarding today's lectures, you can raise your hands. तो प्रॉब्लम्स कर लेते हैं हम फिर, ये जो हमने छोड़ी है। अब मैंने कहा था कि आप खुद कर लें, तो वो ये है। इसमें तो प्रॉब्लम्स हमने ये कर ली हैं, इसको देख लेते हैं। इस प्रॉब्लम को डिटरमाइन द इनपुट एंड द आउटपुट इम्पीडेंसेस ऑफ द एम्पलीफायर। ये जो एम्पलीफायर गिवन है आफ्टर द एप्लीकेशन ऑफ द रेजिस्टेंसेस इन द फिगर, the op-amp data sheet जो हमें है वो gives the information that input impedance जो मैन्युफैक्चरर ने गिवन की है वो 2 मेगा ओम है, और Zout जो मैन्युफैक्चरर ने दी है वो 75 ओम है। हमने आफ्टर एप्लीकेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस फाइंड आउट करनी है, और जो गेन है इसका वो भी मैन्युफैक्चरर ने दिया हुआ, सारी आइटम्स दिए हुए हैं। तो ये फार्मूले में ये सारी वैल्यूज रख दी हमने। तो ये बी आ गया फैक्टर। हमें पता है आउटपुट जो है वो इसकी ये होती है। So after placing the values, we can find out the input impedance of the circuit 17.4 giga ohm। मैन्युफैक्चरर ने कितनी दी थी? 2 मेगा ओम। तो हमने आफ्टर एप्लीकेशन ऑफ रेजिस्टेंस जो हमने निकाली है इसकी इम्पीडेंस वो कितनी बन रही है? 17, इंतहाई ज्यादा उससे। वो 2 मेगा ओम में थी, ये कितनी आ गई है? 17.4 गीगा ओम। उससे कहीं ज्यादा हाई है इनपुट इम्पीडेंस। क्लोज लूप इनपुट इम्पीडेंस आप कह सकते हैं, ये क्लोज लूप इनपुट इम्पीडेंस है, आप ये कह सकते हैं इसको। तो सिमिलरली आउटपुट मालूम करते हैं इसकी आउटपुट इम्पीडेंस। इसकी आउटपुट इम्पीडेंस का फार्मूला ये है, ये इसमें सारी वैल्यूज हमें पहले से पता है, वो मालूम, वो हमने रखी। तो कितनी आ गई? 8.6 मिली ओम। तो मिली में चली गई है भाई। तो एक्चुअली मैन्युफैक्चरर ने जो कितनी गिवन की थी? 75 ओम। तो हमने रेजिस्टेंसेस लगाकर कितनी कर ली है? 8.6 मिली ओम। ये ओम में है 75, ये मिली में चली गई। तो इंतहाई कम हो गई है, आइडियलिटी के करीब चली गई है। इसी तरह दिस इज सच अ स्मॉल नंबर दैट फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस इट कैन बी assumed to be a zero। ये जीरो, ये अप्रोक्सीमेटली मिली में चली गई है एज इन आइडियल केस। तो बी पार्ट में क्या मालूम करना? फाइंड क्लोज लूप गेन। क्लोज लूप गेन तो इसका ये होता है कि कौन सा एम्पलीफायर है, नॉन इनवर्टिंग है, क्योंकि सिग्नल नॉन इनवर्टिंग पर लगाया हुआ है। तो ये है इसका फार्मूला। तो आफ्टर प्लेसिंग द वैल्यू वी हैव फाइंड आउट द गेन इज इक्वल टू 23। तो हमने गेन भी मालूम कर लिया।
तो यहाँ कोई क्वेश्चन हो तो यू कैन रेज योर हैंड्स। अगर यहाँ इस प्रॉब्लम में कोई क्वेश्चन हो तो यू कैन रेज योर हैंड्स, और अदरवाइज वी आर गोइंग टू मूव नेक्स्ट प्रॉब्लम। Then there is a next problem. This one is the voltage follower impedance. उसका फॉर्मूला क्या है, ये है। उसके साथ ये प्रॉब्लम कि the op amp जो कि वोल्टेज फॉलोअर है is used to voltage follower configuration determine the input and the output impedance। तो इसकी इनपुट इम्पीडेंस क्या होती है, वो ये फॉर्मूला है। वैल्यूज प्लेसिंग देन वी हैव फाइंड आउट 400 गीगा ओम। ये तो बहुत ज्यादा है एज गिवन बाय द मैन्युफैक्चरर। ये गीगा ओम में चली गई इनपुट इम्पीडेंस, जब वो मेगा ओम में थी तो आइडियलिटी के करीब चली गई। और ये जी आउट है, वो फॉर्मूला है जी आउट मालूम की 375, तो ये कम हो गई है। एग्जाम्पल 12.5, द op amp ऑफ एग्जाम्पल 12.5, ये आउटपुट इम्पीडेंस कितनी है 75 है। इसमें क्या हुआ होगा इसके साथ, ये ज्यादा हो गई है उससे थोड़ी सी, नहीं ये तो कम हो गई है, माइक्रो में चली गई है। वो ओम में थी, ये माइक्रो, उससे भी इंतहाई कम हो गई है। तो वोल्टेज फॉलोअर की एक्चुअली नॉन इन्वर्टिंग से भी कम हो गई है, इनपुट भी और आउटपुट भी। तो ये आ गया। और फिर इसके साथ ये क्वेश्चन है, ये इन्वर्टिंग वाला क्वेश्चन है। इसमें ये वैल्यूज गिवन है। इनपुट इम्पीडेंस जो है वो कितनी है, 4 मेगा ओम है इनपुट इम्पीडेंस, और आउटपुट इम्पीडेंस गिवन है 50 ओम है। ये हमें इंफॉर्मेशन गिवन है। तो इसका फार्मूला, इसका फैक्टर बी मालूम किया तो 0.001 है। इसका फार्मूला क्या है, ये है। इसमें रखी वैल्यूज तो ये आ गई 980 मिली ओम, जबकि कितनी है 50 ओम मैन्युफैक्चरर ने बताया है। हमने अपनी अरेंजमेंट के साथ इसके साथ क्या कर दिया है, इसको इंतहाई हम कम करके ले गए हैं, इसमें 980 मिली ओम में ले गए। तो इसका क्लोज लूप गेन ये आ गया। तो ये रिलेटेड प्रॉब्लम है। अगर कोई क्वेश्चन है तो यू कैन रेज योर हैंड्स, और अदरवाइज आई एम गोइंग टू write down your names and this will be your attendance. That attendance will not be, is not going to be taken because let me see what is happening with that resistance, that attendance, what is happening with that attendance, what is happening with that attendance। 2 days attendance appearing, यहाँ 1 2 3 4 क्लास में 9 है सिर्फ, और यहाँ पर 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 अपीयर है। जबकि अभी मेरे पास जो है वो वहां पर कितने अपीयर हो रहे हैं, 10 हैं। तो ये 10 ही होंगे, मैं उधर लगाऊंगा जाकर। मैं आपके नाम जो है वो राइट डाउन कर रहा हूँ, irrespective whether you are there or not। Irrespective whether you are people are there or not, I am write down the names and will mark the attendance finally there। हाँ जी, अहमद खालिद ने अब जो है वो हाथ खड़ा कर दिया है। जब अहमद खालिद जो है वो हाथ खड़ा करता है तो खैर नहीं होती। औरों ने भी हाथ खड़े कर दिए। हाँ जी, सिदरा, मैं अलाउ, आप अपने आप को अनम्यूट करके सवाल पूछ लेंगे, मैंने ऑप्शन दे दी है।
सिद्रा है, मैं राइट डाउन कर रहा हूँ। अनम्यूट कर लो ना अपने आप को, जिसका कोई क्वेश्चन है। फिर मैंने आपको ऑप्शन दे दी है, आप अनम्यूट कर लें। गालबन सारे यही शायद कह रहे थे होंगे। फिर आपके पास ऑप्शन है, आप अनम्यूट करके क्वेश्चन पूछ लें। अस्सलाम वालेकुम सर। हाँ जी, वालेकुम सलाम। जवाब बताओ। सही मैं कह रहा था कि मैंने सिर्फ अटेंडेंस का पूछना था कि वो जिसने टर्न इन की हुई है क्लासरूम से गूगल क्लासरूम पे, उसी की होगी कि या आप दोबारा लेंगे? मैं दोबारा अभी दे रहा हूँ, क्योंकि उधर ठीक इधर है सर। सिर्फ 10 है और उधर जो है वो 18 ने लगाई हुई है। मैं आपके यस सर। नाम राइट डाउन कर रहा हूँ, तो वो मैं ठीक है फिर सर। उसके मुताबिक थैंक यू। होगी। और किसी का क्वेश्चन हो रिगार्डिंग लेक्चर? तकरीबन मैं राइट डाउन कर लिए हैं। इधर आप लोग, आपका क्या क्वेश्चन था? अहमद खालिद किधर चला गया? सर मैंने वही अटेंडेंस का पूछना था। अच्छा, अहमद खालिद